अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक होगी। देखो ना, जिवें महंगाई का दौर है तो इतनी आवाम परेशान हुई पई है ना, जिहदा कोई हिसाब नहीं हैगा। तो ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਐਂਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ बोझ हल्का करन। तो आओ वेखते आवाम की आवाज़ सुनते हैं, चलो पता लग जाता की कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लक्कर मंडी टिम्बर मार्केट में मैं मौजूद हूँ। बिजली के बिलों पर यहाँ पर ताजरों ने बुलाया, मैं हाज़िर हो गया। क्या बात करते हैं ये बताएंगे। बिजली के बिल इस वक्त बर्निंग इशू है। मीडिया झूठ बोल रहा है, बिल ज़्यादा नहीं आ रहे, या इसमें हकीकत है? मैं आम आदमी से पूछ रहा हूँ। बिलाल भाई हकीकत तो सारा कुछ है। सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ? ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, उनका दिल रोता है तो आप फिर ना शुक्र हैं। हम पे बिजली का बिजली बन जब गिरता है तो कायदे कौम का, कायदे मोहसिन पाकिस्तान का दिल रोता है खून के आंसू। और आप ना शुक्र बिलाल भाई ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਢਾੜਿਆ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੰਨੇ ਭੁੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਹੌਲਾ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤਾ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਂਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਇਸ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਤਾ ਜੇ? ਕਿੰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ WhatsApp ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 37,800 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 37,800 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਤੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ जाता ना नवाज शरीफ का क्या करेंगे ना। मैं शहबाज शरीफ की गल मैं किस तरह ना करा। शोर है नवाज शरीफ ने साडा मुल्क तबाह बर्बाद कर दिता है। तानू सिर्फ इमरान खान नजर आंदा है। सर लड़ाई की बात नहीं, सर लड़ाई नहीं, सर लड़ाई नहीं आप हैगा इमरान खान देंदी है आवाम ਨੂੰ देंदी है। लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी साडे ਵੱਡੇ ओ मेरे नाल गल करो कि चंदा इकट्ठा मैं सर इमरान खान ने सारी जिंदगी चंदा इकट्ठा किया, ठीक है। शौकत खान सारी मीडिया गूगल खोल लो, सारे सबूत क्यों नहीं साडा मीडिया कहंदा रहा चैनल दी रिपोर्ट मेरे वाल तकाओ। मेरे वाल मोदी नु बगैर वीजे तो कौन पाकिस्तान ले आए सी? मेरी गल सुन लो, उन्होंने बुलाया ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने गया आलमी सतह पे खड़ो ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ? कहना जी ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी नबी की शान करता। आप बोले यार, आपने नहीं कहना पिया मैं आपके पास ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੰਘ ਦਿਖਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। अमेरिका में स्टेट चढ़ गया, अमेरिका में चढ़ गए नोट के नहीं किया। ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ। नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ जरदारी कौन है? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਡਾਕੂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ।
2015 ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਕਾਤਖੋਰ ਆਇਆ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करता है। इसका जवाब दें। मैं देता हूँ ना सर एक एक करके बात हो जाए, एक एक करके 2015 में कह रहे हैं खुशहाल थे, खान है मेरा, ये कह रहे हैं क्यों खुशहाल हर बंदा खुशहाल था। 45 रुपए किलो चीनी सी, ठीक है, आटा किलो का सी 20 किलो का। मेरी सुनोगे ਜ਼ਕਾਤਖੋਰ ਆਇਆ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान नहीं फिरना। तुसी बोलो मैं दस रहा हूँ इमरान खान को आम कहना है ज़कातखोर है उन्होंने सर इन्हें भी तो इमरान खान नहीं फिरदा ना सर इन्हें भी बोला कलमे दी गवर्नमेंट बैठे फार्म 47 वाले फार्म 45 नहीं फार्म भूल गए ने आवाम ने जो मैंडेट दिता इमरान खान जी, को पूछो वो भूल गए ने 40 साल तो ये पता कौन लोग शेयर लीडर पता क्या होता है? 2 लाख रुपया आया है कितना 2 लाख रुपया मीडिया आओ जरा चले गए 2 लाख रुपया बंद मीटर से 2 लाख रुपया बिल आया ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਹੁਣੀ ਰੁਪਏ पर्ची लेके गए ने वो वार्ड वाले तो ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਹੈ 1,12,000 रुपया मेरा बिल आया है। ਇਹ ਜਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ नहीं ना सारी बात लग गई है सादा एक रुपये हर बिल का ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ इमरान खान 1,12,000 रुपया बिल आया है। 1,12,000 रुपया बिल आया है। मोटरसाइकिल बेचे तो बिल पे करना आपका एक सेकंड सुन तो लो यार 1,12,000 रुपया बिल बिल आया बिल आया। क्या बेची है होंडा 125 बेचा है, अब उसका बिल पे करना है। यार ये सुने 1000 बिल आया लेकिन फिर भी एक बार फिर शेयर कहता दुनिया में जाएंगे बात नहीं करनी करते रहो राह पहनते रहो समझते हो इनको छोड़ो इनकी बात नहीं करनी होंडा 125 बेची सर एक सेकंड में 125 सेल किया 1,12,000 रुपया बिल पे किया है। होंडा 125 बेचा है। आपने होंडा 125 बेचा है आपका 1,12,000 बिल आया अल्फन कहते हैं अल्फन कहता हूँ। कब आया है अभी ये माह में ये पिछले होंडा बेच दी होंडा बेच दिया है। कितने यूनिट है घर में क्या क्या लगाया है घर में एक कूलर लगा है, पंखा लगा है और जो फ्रिज है और जो यूनिट कितने चले हैं? कोई यूनिट का पता नहीं, तस्वीर ही नहीं आती है उसके ऊपर। हमारा 1,45,000 रुपया बिल आया लेकिन हमने खुशी से दिया क्यों हमने मजे नहीं लिए एसी नहीं चलाया एसी चलाया तो बिल आया ना हमने ऐसे हमने चलाया भाई चलाया तो बिल आया ऐसे किसी का नहीं आया जी जी बिलाल अस्सलाम वालेकुम। सर 2018 में खान साहब ना आते ना तो आज ये नौबत नहीं आ रही। जो 3.5 साल जो हमें अगर 2022 में शुभाष शरीफ ना आता तो आज ये नौबत ना आती लोग ये कहते हैं देखे सर वो लोग कहते हैं ना एक मिनट यार 40 साल से सर जी उस टाइम सबने कह दिए जी अभी नहीं आने थे इन्हें बोलने देने पाकिस्तान क्रश कर गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान दबाव बर्बाद हो गया, श्रीलंका वाला हाल होगा। ये किसने कहा था? खान साहब कह रहे थे। नहीं जरदारी साहब कह रहे थे हमजा साहब लश्कर में जाया करते थे आज हमजा साहब मुझे नजर नहीं आते वो कहते अखियां उठीक दिया दिल बाजा मारदा आजा बच्ची बीमार है अल्लाह ताला सेहत देवे लेकिन नाजन ਪੁੱਛ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ एक और चीज ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ सर नवाज शरीफ साहब कितने ने सर वो आराम से कार ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ बैठे ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ठीक सोच रहे हैं किसी कहते एक मिनट ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ सर एक सेकंड बाद में शहबाज शरीफ बन क्या गया। कहते हैं? नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए बुलाया, बाद में शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया पाकिस्तान का। वो इसलिए मुल्क डिफाल्टर हो जाना था डिफाल्टर हो गया, वो तो कपड़े बेचने के लिए अपने कपड़े बेच रहा था। अच्छा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अगर शहबाज शरीफ कपड़े बेचता आपने बेचने थे अपने लीडर के पीछे कपड़े हाँ जी बेचने थे सारे कपड़े खरीदने के लिए इन्हों के कपड़े खरीदने के लिए नवाज शरीफ के कपड़े एक सेकंड कपड़े कोई खरीदता बच्चों वाले कपड़े कोई खरीदता इमरान साइन कर देना साइन ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ
पुराने पटे कपड़े। शहबाज शरीफ के कपड़े करोड़ों में बिकेंगे। किसने खरीदने? कौन लेगा? कौन खरीदेगा? पूछो कौन खरीदेगा? इंशाल्लाह अगर शहबाज शरीफ साइन करोड़ों में बिके, एक सिग्नेचर करोड़ों में बिके इमरान खान का। इमरान खान करदा नहीं बैठ जाए वो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए, उसको इसलिए बंद किया है। एक ही पाकिस्तान के एक सेकंड आपसे आप नून लीग से मोहब्बत करते हैं बात, मैं आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। अगर शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचे, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के पता आप कितने में खरीदे? 10 करोड़ 20 करोड़ अरब रुपया इंशाल्लाह कार बेच देंगे। कार बेच दो, कार बेच देंगे अपना। अल्लाह ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚੋਗੇ? भेज देवांगे ਅਸੀਂ ਵੀ अपना शहबाज शरीफ आप एक सेकंड सर्वे कराने, शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचे आप खरीदेंगे? मुल्क ले ये कह रहे हैं बेचने लगे। चंदा लेके गया इमरान खान खा गया। शहबाज शरीफ कपड़े बेचे खरीदोगे? आज कैदी नंबर 804 बाहर आवे, कसम खुदा दी मुल्क दे हालात सारे सेट हो जाए। कैदी नंबर 804 बाहर आ जावे, सारे मुल्क दे हालात। लीडर है जेड़ा 2-4 साल कटदा है, मुश्किल टाइम आंदा नस जांदा बाहर। इन्हां नूं पूछो क्यों नसदा है? किसको चोर का हुआ इसने? नवाज शरीफ एक सवाल का जवाब दे। एक सेकंड यार प्रोग्राम खराब ना करें, मैं सबके पूरा टब्बर चोर, पूरा टब्बर। एक सवाल का जवाब दे। अगर आप चोर है। नहीं, अगर आपके शहबाज शरीफ के कपड़े पहन के आपके अंदर हिम्मत आ जाए शुबाना रोज पाकिस्तान की खिदमत करने की, फिर उनके कपड़े पाए में है, माफी दे नहीं, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਗੈਰਤਮੰਦ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗੈਰਤਮੰਦ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਐ ਵੇਖੋ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜਕ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲਵ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਵੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵੋਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰੂੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੂਨ ਕੇ ਆਂਸੂ ਰੋ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ 7-7 ਰੁਪਏ 10-10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੱਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ हुकूमत सही नहीं होगी, हाँ कुछ भी नहीं, हर बंदा परेशान होया पिया इस टाइम, किसी नूं कुछ नहीं पता है। और खुदा दी कसम रोंदे जांदे ने घर, इस टाइम सारे वेले फिरदे पे। ये ताजर यहाँ रो रहा है। मार्केट में काम ही नहीं है तो ताजर ने रोना ही है ना, वो क्या करेंगे बताइए। नहीं कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ना, ये गरीबों के लिए सिर्फ, जितने बजट आई है सब गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं। वो खरीदना है शहबाज शरीफ के कपड़े लवोगे ना? भाई किसी के कपड़े नहीं लावांगा। तब्दीली आने तो पहले ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। हैं जी 14 ਤੋਂ यूनिट ਛੱਡਿਆ ਸੀ, 35 ਤੋਂ ਆਟਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, 55 ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। हैं जी उसने कोई नहीं बोला, इसलिए उन्होंने कहा 500 रुपए लीटर तेल हो जाए, हम खान के साथ है। एनजीओ आई सी और 5 रुपए यूनिट वाटा फलाना गंजा भी चोरे, टिंगना भी चोरे यार। 5 रुपए ते नहीं वधिया, खुदा दे बंदे एग्जांपल ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਗਰਾ ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। हर एग्जांपल ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਂ में मार्केट खा हाँ वाकई भुखी रह गई है। सर इनकी बात आने दीजिए। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बड़ा वर्कर हूँ, ठीक है आप आए बोलें। लेकिन इस वक्त शहबाज पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करता हूँ, जितनी महंगाई उसने कर दी है, इसलिए कि हकीकत को हकीकत कहना चाहिए। चाहे पार्टी की बात नहीं है, मुस्लिम लीग नून तरीके इंसाफ सारे भाई हैं हम, भाई सही लेकिन बात है। जो महंगाई का सैलाब आ गया इसको कोई नहीं रोक सकता। हमजा साहब रोक सकते हैं? नहीं रोक सकता। मुझे किसी ने कहा वो इस वक्त छुपे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। कहता हूँ शहबाज की हुकूमत चली जाए, इमरान खान को दे दे, इससे बदतर तरीन हाल हो गए। क्यों कि आप सबको पता है जो MF ने जो किया है, सारा MF ने नहीं किया, कुछ लोग हमारी भी गलती है।
हम खुद गलत हैं। आप नून लीग के वर्कर हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आप मानते हैं कि हुकूमत ने महंगाई का अजाब ले आई। फिर भी वोट शेयर को डालूंगा। और ये यानी कि महंगाई भी यही लेके आए। महंगाई मैं बोल रहा हूँ कि महंगाई की जो वजूहत है सबको पता है। सच्चा इंसान है। ये माशाल्लाह इनकी उम्र कितनी होगी? अंकल जी कितनी उम्र है? मैंने मेरी 60 साल के करीब है। 60 साल के करीब हैं। आज फिर कह रहे हैं कि मैं फिर इनको वोट दूंगा। और कह भी रहे हैं कि महंगाई लेके आए हैं, फिर कह रहे हैं कि वोट इसको दूंगा। शाबाश जी आपकी। आप ये ना कहें, आप कहें, मैं बताता हूँ इसका हल क्या। आप कहें मोहब्बत करे या जफा करे, सर तेरे कदमों पे। बिल्कुल यही बात है। दुआ करें जब दुनिया से जाने लगे तो उस वक्त भी कायदे, जो नून लीग वाले कहते हैं कायदे मिल्लत कहते हैं ना नवाज शरीफ को, उस वक्त उनकी जियारत हो। ये इश्क की कैफियत, आप इस आशिक है नवाज शरीफ के, आप आम आदमी नहीं है। व्यूअर्स देखें, एक सेकंड चुप हो जाए, हुन इश्क दियां गल्लां ने। ये बुजुर्ग आदमी है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। इन्होंने कहा भूख हो, नंग हो, इफलास हो, महंगाई हो, कारोबार बर्बाद हो जाए, दवाइयों के पैसे ना हो, दुनिया से रुल के चले जाए, लेकिन वोट नवाज शरीफ। ये इश्क है, ये हीरा है, ये हीरे हैं मियाँ साहब, ये आपके हीरे तराशे में हैं। हाँ, इसको पहचानो। हाँ, ये सही जो है बात ना, है। ये खुद कहते हैं कि जरदारी डाकू बैठे हैं, इसकी हुकूमत ठीक है। और ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहता था माजी में, पूरा मुल्क को लूट के ले गए हैं, वो ठीक है। ये खुद कह रहे हैं महंगाई है, हमने खुद अपनी बाइक्स बेची हैं, हम आज बिल पे कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बाइक्स बेच दी है। हाँ, हम बिल पे कर रहे हैं। ये हालात के अल्लाह ना करे आपको और मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, इतनी महंगाई हो। परेशान हूँ, 200 से 1 यूनिट भी ज्यादा हो गया ना, बिल डबल हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? फिर भी वोट नवाज शरीफ का। आखिर क्या दिखाया उसने? दिखाया नहीं, बस मोहब्बत है। कुछ दिखाया? पंजाबी हैं, पंजाब से मोहब्बत करते हैं बस। उनको पता क्या बोले? उनको बोले जिस सफ में नवाज शरीफ उठाया जाएगा, आप भी उसी सफ में उठो। बोले आप अल्लाह आमीन। वो हाजी नमाजी या वो हर दफा इत्तिकाफ करता है, आमीन, हम उसी साथ में उठेंगे। आप भी कहते हैं जहाँ पे इमरान खान उठेगा, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इंशाल्लाह उठेंगे। अफगान मुत्तहिदा में उसने कैसी ऐलान, इधर आओ, आप ये उनसे पूछो। बात कर, आप अल्लाह से दुआ करते जो नवाज शरीफ का जैसा खात्मा हो, जैसी आखिरत उसकी हो, आले शरीफ की आपकी वैसी हो। आमीन हो। 188 पेशियां भुगत के वो कुछ नहीं साबित कर सका, अपनी बीवी मर गई। जिदों मरियम ने तकड़ियां रखी तुसी रोए सी, सच दसना यार। साइड तो ऐसी नजरियाती कांसर रोंदे सी तुसी। गलत है, ਅਸੀਂ कह रहे हैं नवाज शरीफ गलत है, महंगाई हो जाए, नजरियाती कारकन कहंदा कि गलत है। नसदा क्यों सी? ना कोले पूछो बाहर क्यों नसदा सी? ओ तबीयत खराब सी, क्यों नसदा सी? खान साहब ने किया सी इनको बाहर भेज दे। चलो ऐद के खान साहब ने क्या पिछली बारी के नहीं किया, उस तो पिछली बारी के नहीं किया। ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲਾਂਦੇ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? तो ऐना फिर बड़ा लीडर ना होया ना, फिर तो छोटा लीडर, फिर तो बुरा ना मनो, फिर बुरा ना मनो। 804 ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਆਕਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮ 45 ਦਿਓ, ਫਾਰਮ 47 ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੋਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨमेंट ਦੇ पे आप लोग 13 महीने बैठे रहे, एंड पे आपने कहा हमारा सियासी बयान है। चाइना के सदर का दौरा मंसूख हुआ, हमारा सियासी बयान है। मुल्क का नुकसान किसने पहुंचाया, मुल्क की जड़ें किसने कमजोर किया है? आप मीडिया, आपको ये कहना चाहिए कि आपको नजरियाती हो कि इससे पूछो नवाज शरीफ के बेटे कहाँ हैं, इससे ये पूछो। नवाज शरीफ बाहर खिदमत कर रहे हैं, बाहर खिदमत कर रहे हैं। इमरान खान साहब के कहाँ हैं? उसकी मां के पास हैं, तो बात वो भी ओ ना यार, अल्लाह जिंदगी देवे सहन हुसैन, हसन हुसैन नु ओ मां दे कोल नहीं हैगे, पुत्र ही ने, उनकी मां मर चुकी है अपने मुल्क। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह पुत्र ही ने, कसम खुदा दी एना दिमाग च ना बड़यानी पड़ी गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह खोता खा खा के ना दिमाग पड़े गए, खोता कौम हो गई है, कसम खुदा दी है, खोता हो गई है कौम ना, खोता हो गई है। नवाज शरीफ की खातिर वो आपको बुरा ना मानेगा, वो कह रहा है गधा, वो आपको गधा कह रहा है, मान लेते हैं उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत मुझे कह ले। अगर यही मोहब्बत आप जितने भी लोग खड़े हैं माशाल्लाह मुसलमान हैं, आप मुसलमान हो ना, अगर यही मोहब्बत आप सब अपने आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करें, और उनके साथ उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो उलमा इकराम, उनके भाई उनसे तो सब, मैं तो मेरा ये मानना है, करता है ना, मैं कहता हूँ मेरा बिलीव है जो
मदीना पाक से कुत्ता भी गुजर गया ना, मैं ये चलाना है पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। मैं वहाँ भी नहीं खड़ा होता, मैं अपने अल्लाह के नबी को वहाँ समझता हूँ। आपसे एक मेरा आपसे सवाल है, लेकिन अभी सियासत पे बात हो रही है, जी, बिजली महंगी, सियासत मुझे बताएं बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल हमारा 12,900 कुछ है। पहले कितने आता था? पहले 3,000 कुछ, 3,000 4,000। देखें नवाज शरीफ आया 31,160 किसी की बात इसमें आ रहे हैं। सिर्फ 2 पक्के एक बल्ब, 2 पक्के एक बल्ब, 31,160। अब ये बिल कैसे कम हो सकता है? इसका कोई इलाज है? अब हमके पास नहीं है। कपड़े भी बेचो आप लोग। यार इसकी जरा बात सुने, 20,000 सैलरी जी, बिल कितना? 31,160 रुपए। कैसे उतारेंगे? वो तो अल्लाह की मर्जी, कर्जा लेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे भाई पूछ रहे हैं कि इसका क्या हाल है, इसका पता क्या हाल है? वो अली मोहम्मद का शेर है, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बाग पे यकजा, उस कौम का हाकिम फकत उसकी सजा है। जब तक ये कौम एक होके बाहर नहीं निकलेगी ना कश्मीर की तरह, आजाद कश्मीर में देखा ना जैसे अवाम बाहर निकली, वैसे जब तक ये कौम नहीं निकलेगी इस कौम का कोई हल नहीं निकल सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता। बिलाल भाई सड़कों पे आना पड़ेगा, जब तक सड़कों पे शहबाज शरीफ के पीछे कि हमजा साहब के पीछे? किसी के पीछे आप ही नहीं, मरियम खान के पीछे, इमरान खान के पीछे। वो तो अंदर है गए आएगा बाहर, आप ही मरियम जो मियाँ साहब जो होंगे नहीं आ सकते, बड़े गुस्से च ने इस दफा। आएगा इंशाल्लाह, वो बाहर आएगा। मियाँ साहब का दिल खून के आंसू रोया, मैं तो आया आवाम के पास, इस मौके पे मैं मियाँ साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं बिजली का बिल बिजली बन के गिरे तो मेरा दिल खून के आंसू रोए, तो क्या वो तनकीद कर रहे हैं? भाई मैं तो कह रहा हूँ यार आपका लीडर है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अभी सर ये ऑनलाइन चल रहा है, चल रहा है सर, चल रहा है, न्यूज़ वगैरह में आएगा, बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। सर जी ये है कि हर बंदा यहाँ पे परेशान है, ठीक है, ठीक है। सिंपल मैं शॉर्ट बात करूँगा, मैं अल्लाह का शुक्र है हर बैंक में काम करता हूँ, ठीक है। प्लस ये है कि सिर्फ हुक्मरानों ने लूटा है पाकिस्तान को, ये सिर्फ तंग की है, और आजकल और ज़्यादा बिजली के बिलों की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, और इस पे टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती है। पाकिस्तान में उस हिसाब से कमाइयाँ नहीं है, बंदे इतना नहीं कमा रहे कि जितने 30-30 हज़ार रुपया बिल या 40-40 हज़ार रुपया बिल घरों का बंदे नहीं दे सकते, तनख्वाह पेशा भी नहीं दे सकते, और कारोबार को वैसे नुकसान किया हुआ है महंगाइयों की वजह से, कि महंगाइयों की वजह से कस्टमर सेल है ही नहीं, कस्टमर के पास पावर ही नहीं है परचेजिंग की, तो वो कैसे परचेजिंग करेंगे, कारोबार कैसे चलेंगे, महंगाई एक्स्ट्रा है। पेट्रोल भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में 300 रुपये लीटर के पास होना ही नहीं चाहिए, हर तरफ से ज्यादती है, और जिम्मेदार वो हुक्मरान है जिन्होंने 30-40 साल से पाकिस्तान को लूटा है और करप्शन की है सिर्फ, और बाहर प्रॉपर्टीज बनाई है अपने घरों सर में। उनके दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये सियासी बयान सिर्फ वोट लेने आप के कैसे कह सकते हैं सर? सर ये झूठ ही है, सबूत है वहाँ के पास है, हर बंदा उसमें उस चीज़ में गुजर रहा है, ये भाई भी हर बंदा गुजर रहा है, हर बंदा इसी सूरत हाल से गुजर रहा है। एक सवाल आपसे करूं, एक आपी मरियम वो कहती है मुझे टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोगों ने उसका मतलब गलत लिया, यानी मैं समझता हूँ वो सारा दिन अवाम की खिदमत करती है। एक सेकंड, शहबाज शरीफ ने मेरी और आपकी खिदमत करते कमर की दर्द लगा ली, जरदारी साहब कई दफ़ा बीमार हुए, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए, उनकी हालतें ख़राब है, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुने, मेरी रिक्वेस्ट होगी एक आपसे भी पर्सनल के काइंडली न्यूज़ में या मीडिया पे मेरा भी इंटरव्यू चलाएं। मेरा वादा चलेगा, काइंडली जज़ाकल्लाह, वो लाजमी चलेगा। सर ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज है, झूठ है, फलाने की कमर फलाने की उम्र। आम वाम पाकिस्तानी कितने अस्पतालों में पड़े हुए हैं, हर बंदे का, हर अल्लाह के बंदे का उतना ही राइट है, उतना ही हक है। इंसान वो भी है, इंसान मैं भी, इंसान ये भी है, इंसान वो भी है, बीमार ये भी होता है, इसका वालिद भी होता है, किसी की माँ भी है। दवाइयों के पैसे नहीं लोगों के पास, हुक्मरानों के पास तो अरबों रुपए है, जो लूटा हुआ है अरबों रुपए है। बातों से सर जी नहीं होते काम, पेट्रोल नीचे आए, महंगाई कम हो, मस्जिदों को ताला अल्लाह के घरों को लग रहा है बिलों की वजह से कि 60-60 हज़ार रुपए के बिल नहीं जमा हो रहे। जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं सर, वक्त के हुक्मरान जिम्मेदार है कि अल्लाह के घर को ताला लग गया बिल की वजह से। इससे ज़्यादा जुल्म क्या है? पाकिस्तान में ऐसा कभी होता है किसी मुल्क में? इंग्लैंड में, यूरोप में, सर मैं लंदन भी रहा हूँ, दुबई भी रहा हूँ, ठीक है। I worked in London for about 2.5 years. ठीक है। Right, and I lived in London and I
वर्कड ऑल्सो इन दुबई। ठीक है ना। तो सर ये जो है ना, ऐसे मुल्क नहीं चलाए जाते बातों से या सियासत से कि पैसा, कोई भी पार्टी है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी है कि पैसा लगाया और उसके बाद इकट्ठा किया, ठीक है, इलेक्शन कैंपेनों पे या टिकट लेने में पैसा लगाया, उसके बाद उसको अवाम को चूस के इकट्ठा किया, अवाम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे कर्जे लिए, अरबों रुपए करोड़ों रुपये, वो भी अपनी जेबों में डाले, अपनी फैमिलियों में डाले, मुल्क पे कुछ ना लगाया, टैक्स लिया वो भी खाया। ज्यादती है सर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है, ठीक है। तो ये सिस्टम बदलना चाहिए, ठीक है, सिस्टम वो अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे दे, ठीक है, ऐसे बंदे दे, कोई ऐसे हुक्मरान आए जो तब्दीली, जो बातों से नहीं सर, काम दुनिया को कोई भी बात से नहीं होता, करके होता है। मैं बैंक का प्रोफेशनल हूँ तो मेरा भी काम करके होता है, आप न्यूज़ के स्टाफ है, आपका भी काम करके होता है, बातें करने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही है। पेट्रोल आए नीचे, ठीक है, मुल्क के हिसाब से आए 300 रुपए लीटर। सर इस साल तो चांसेस नहीं है, IMF के साथ मुआहदे बड़े सख्त हैं। सर ये रंडी रोना, IMF वाला पाकिस्तान जब से बना है और पिछले 30-40 सालों से ये कार्ड है सिर्फ बहाने का, और कुछ नहीं है। जहाँ से सस्ती बिजली, जहाँ से सस्ता पेट्रोल मिलता है, उनके साथ एग्रीमेंट नहीं होते। जहाँ पे अपने फ़ायदे होते हैं, किसी भी हुक्मरान के अपने फ़ायदे, अपनी फैमिली के फ़ायदे होते हैं, उधर एग्रीमेंट होते हैं। ये नहीं है अवाम का ख्याल करके यार कमा कितना बंदा रहा है, तनख्वाहदार बंदा एवरेज कितना कमा रहा है, कारोबारों के क्या हालात हैं, उस हिसाब से पेट्रोल महंगा होना चाहिए, और उस हिसाब से हर ज़रूरत की चीज़, बिजली सस्ती, बिल कम होने चाहिए। इतने बिल नहीं है भाई, तनख्वाहदार बंदा अगर 20-30 हज़ार रुपये पाकिस्तान में कमा रहा है तो 38 हज़ार रुपये बिल वो कैसे दे, 40 हज़ार रुपये बिल कैसे दे वो? तनख्वाह में से जिम्मेदारियाँ बीवी बच्चों के पास कैसे वो पैसे लगाए? ठीक कह रहे हो। घर में जौन से जेवर पड़े होंगे वो ही बेचने पड़ेंगे ना, किसी का चेज पड़ा होगा, वो बच्ची के बालियों के कांटे बिक जाएंगे। फिर नवाज शरीफ होते बिक सकते हैं सर। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ आए हुए, चाहे जरदारी है, चाहे इमरान खान, कोई भी आया ना, अवाम रोती रही है। कोई होशियार ये मेरा भैया फिर गलत कह रहा है। इमरान खान कैसे रोते रहे, मुझे बताओ। IMF ने कर्जा जितना कुछ दिया है इमरान खान की हुकूमत में, मैं बताता हूँ कुछ नहीं देता। एक सेकंड बहस नहीं, आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, आप क्या कहेंगे? आपस की बहस कोई किसी पार्टी का, एक सेकंड बताता हूँ ताजर लोगों के लिए। एक सेकंड ताजर लोगों से पूछे, ये जूतियों के काम करते हैं। मैं खुद काम करता था, मेरा कारखाना था, मेरा बंद हो गया इमरान खान के दौर में। मैं कसम खाता हूँ 160 रुपए का मैं नवाज शरीफ दौर में लेके आया था DOP। इमरान खान ने अरब के, बात आपकी आ गई, आपकी बात। और इस वक्त बिजली का इशू है, बिजली का बहुत ज्यादा है, इतने बिल पाकिस्तान में कमाइयों के हिसाब से, तनख्वाह पेशा बंदा मैं भी हूँ। जी ठीक है सर जी। इमरान खान ने कोरोना में उनकी हुकूमत थी, उन्होंने बिजली में बहुत सारे अवाम को रिलीफ दी है, बिल माफ दी है, 5 रुपए कुछ यार बिलों में उन्होंने सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को आज से 1 जुलाई से 35 रुपए कुछ पैसे का यूनिट पड़ना है, 35 रुपए कुछ रुपए यूनिट पड़ना है टैक्सेस के अलावा। सर ये तो है 200 के अंडर, जो जाएंगे 300-400 यूनिट, उनके और रेट्स है 60-70 रुपए तक बात चली गई है। 300 का और है, 400 का कुछ और है। 3085 रुपए बिल आएगा 200 यूनिट को, अगर 201 यूनिट होगा तो 8085 रुपए बिल आएगा। आप कुछ कहेंगे? मैं आऊँगा। असल में ना ये हम कुफराने नियमत कर रहे हैं सारे। मैं दूसरी नज़र से देखता हूँ, हर बंदा जब इमरान खान का दौर था ना, तो कोई भी चीज़ जो 10 रुपए की चीज़ थी ना, वो 20 की बेचता था, कहते तो 2 तब्दीली को वोट। समझ आई? ठीक है, हकीकत है। इस भाई ने ताजरों वाली बात की है, यही ताजर और मेरी बात सर एक सेकंड है ना, जवाब दिया ना, मैं मुझे भी देने दे, मैं भी इसी मुआशरे के हिस्सा हूँ। 2021 में आया ना कोरोना, और 22 में जब खान की हुकूमत थी ना, खान ने पता क्या रिलीफ दिया ताजरों के, इन ताजरों को मेरे समेत, उनका जिस बंदे ने 2019 में जितना बिल जलाया है वो अब डबल करे, अब उससे ज़्यादा जितने यूनिट होंगे ना वो फ्री होगा। बल्कि ताजरों के 3 महीने के बिल फ्री किए उन्होंने पिछले रेट के हिसाब से, यानी इस मार्च अप्रैल मई पिछले 3 महीनों के उन्होंने फ्री किए। और आम कारोबार लोग, ये जितने भी ताजर रहा था, इन्होंने कभी भी किसी को बताया आज तक कि हमारे बिल फ्री हुए?
3 महीने के 5-5 लाख 8-8 10-10 लाख लोगों के बिल फ्री हुए थे। लेकिन मसला पता क्या सर सुभाष सर सुभाष भी तो आपके लिए तो वो कपड़े बेचने को तैयार था ना, उसका भी तो वो बेचे, फिर वो बेचे क्यों नहीं बेच रहा? वो कहने लगे भाई वो बेचे या ना बेचे हमारे बिके, यार एक सेकंड, वो बेचे या ना बेचे लोगों के जेवर बिक गए। सर मैं बिजली का प्रोग्राम है, बिजली पे बताएं इस वक्त बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, बाहर में गए जो माजी में सर महंगाई है। आज स्लैब बढ़ाया उन्होंने 7 रुपए 12 पैसे, आज 5 रुपए कुछ 95% पाकिस्तानी बिल जो ज्यादती अभी चल रही है ज्यादा की 95% पाकिस्तानी नहीं दे सकता बिल। 5% वो दे सकते हैं जिनके पास खुला पैसा है, अरबों रुपया करोड़ों रुपया वो दे सकते हैं, या जिन लोगों की फैमिलीज बाहर है 95% बंदे नहीं दे सकते। मिडिल स्टेटस या बिलो स्टेटस। बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल है, क्या ट्रांजैक्शन है? सर देखें वो तो बहरहाल मामले चलते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ कोर्स कम है क्योंकि बिजनेस कम है। दुआ करे और हमारी कौम और ये आने वाली नस्ल का वो एक मुस्तकबिल था। इमरान खान कैदी नंबर 804, सारी अवाम उसके पीछे खड़ी है और वही इंशाल्लाह कि मुल्क का हल निकालेगा इंशाल्लाह। अगर गल सुनो, अगर जुनेद सफदर को सरप्राइज लाया कल सियासत कल सियासत हाल ओदे को लोया फिर की करोगे? ख्वाजा साहब भी वाम के वोट लेकर आगे आए, बताओ वाम के वोट लेकर आगे आए हो गई है वो तो बेगम क्या कहती है? सनाउल्लाह मस्तीकिल साहब क्या कह रहे थे, वो आपने सबने क्लिप सुना ही है, कह रहे हैं हम वाम का वोट लेके आगे नहीं आए, आगे फिर आपको बताया, बाकी सबको बताया फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 का भी, ठीक है। तो ये बात तो आपको मैं कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह की बातें हमसे करें, आप भी तो इल्म वाले हैं, आपको भी पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो फिर आप आवाम से आगे सवाल कर रहे हैं, शर्मिंदगी की बात है ये। मैं मेरे प्यारे भाई आपका हक है मेरे पे तनकीद करना जिस तरह हम करते हैं, मैं अगर अपनी राय दूंगा तो आप ही कहोगे कि यार एंकर तो पार्टी बन गया। आपके पास आने का मकसद ये है कि जो आवाम बोलेगी हम दिखाएंगे। लेकिन आप खान साहब की भी तो बात कर सकते हैं, मरियम नवाज बड़ी गुस्से में आई, वो बड़ा गुस्से में है, ये तो बात कोई ना हुई। आप ये कह सकते हैं अली खान साहब बहुत गुस्से में है। मैनू एक बंदे ने कहा मियाँ छोटे मियाँ ते बड़े मियाँ सब गुस्से च रहंदे ने, मुल्क की हालत खराब हो रही है। अस्सी भी तो बंदे हैं ना, की कह रहे हो? मियाँ साहब आपने उनकी बात सुन के हमें आगे तनकीद कर रहे हैं, तो हम भी तो बनते ही हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि खान साहब सही हैं। अब आप खान साहब के बारे में सवाल कर लें, खान साहब कैसे बाहर आके हालात बेहतर करेंगे? खान साहब हम लेके आएंगे बाहर, हम रोडों पे आएंगे तो वो बाहर आएंगे। खान साहब 2 घंटे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बाहर आएगा और तब्दीली फिर ले आएगा इंशाल्लाह। मैं कहना हूँ इंशाल्लाह फिर ले आएगा सारे को इंशाल्लाह। देखिए बिलाल भाई, जब नवाज शरीफ का दौर था ना तब था 60 रुपए लीटर पेट्रोल, ठीक है। इमरान खान नहीं 100 पे चला गया था जो शायद का गाना बात गए थे। मिनिमम प्राइस जो थी ना वो 60 थी, ठीक है। उसके बाद 100 पे चला गया, इमरान खान की हुकूमत आई 150 पे गया, 4.5 साल पे 4.5, ठीक है। उसके बाद जो बढ़ा है शहबाज पाकिस्तान शबाना रोज काम करते आए और पेट्रोल 300 के पास ले गए। एक पार्टी ये है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ है। एक बात बताइए सर, मुझे आपने अपनी मोटरसाइकिल यास्मीन राशिद है, उसका क्या कसूर है? वो एक अपना वो पेशेंट है, उसकी कैंसर की पेशेंट है, वो बेचारी आज 1.5 साल से अंदर पड़ी है, उसको कोई पुरसान नहीं है, उसका कोई हाल नहीं है। इसी तरह दूसरी हमारी बहनें हैं, उसका कोई हाल नहीं है, उसका पुरसान नहीं है। कहते हैं जी मरियम नवाज की गवर्नमेंट है, वज़ीर आला पंजाब है, उसको तो सबसे पहले चाहिए था कि लेडीज़ को सबको बाहर निकाल देती, उसको रिहा कर देती। ये कैसी गवर्नमेंट है सर? आप मुझे इनका ज़रा बताएं कि ये जो हमारी बहनें हैं, ये जो हमारी औरतें हैं, आज जेलों में किस हाल में आप यहाँ पे खड़े हैं, देखो कितनी गर्मी है, तो जेल में क्या हालात हैं, उसको क्यों नहीं रिहा कर रहे हैं? बताएं जरा मुझे। इसी तरह मरियम नवाज को चाहिए था कि ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है और कैंसर की पेशेंट है, उसको सबसे पहले रिहाई करनी चाहिए थी, उसको छोड़ देते कि जनाब इसको छोड़ दिया जाए। वो बेचारी उसी तरह, उसकी तबीयत ख़राब है, उस दिन सर्विस हॉस्पिटल लेके आए, वो जब ठीक हुई तो दोबारा उसको जेल में घुसा दिया है। इसका क्या हमारी बहनें नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, यहाँ पे कोई रूल और फ्लॉ नहीं है, ये कैसा पाकिस्तान है? इन औरतों को तो रिहा किया जाए। मोटर बाइक बिकी, अब आपके पास कन्वींस क्या रह गई है? हमारे पास पैदल हूँ मैं।
आप ये बताएं कि ये जो हमारी बहनें अंदर हैं, छोड़ दें, बहनों की भी अल्लाह शादी टाइम करे। पे 10 जगह पे उनके ऊपर मुकदमे किए हैं वो और सर आप मुझे ये बताएं, अब आप अपना जो कितनी आपकी ट्रैवलिंग है बिजनेस पॉइंट की, घर और बिजनेस पॉइंट का? क्या है, कुछ भी नहीं है, कारोबार तो है नहीं है, कहाँ काम करें, किधर जाएं बताएं आप? कारोबार हो तो हम काम करेंगे, कारोबार है नहीं। आप बात करेंगे बिजली के बिलों पे? जी सर। एक भाई पीछे रुके हैं, इन्होंने तो अपनी मोटर बाइक बेच दी है, तो आपके बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? थोड़ा आगे कर ले सर। बिजली का बिल तो आसमानों पे ही है। घर का जो है सर मैंने अभी जमा करना है, लास्ट डेट जो है उसकी 8 तारीख है। थोड़ा आगे कर ले, थोड़ा आगे। अच्छा, 31,366 रुपए बिल है। 2 कूलर के पंखे सर, 1 मोटर के जो है पानी की है और 1 बल्ब चल रहा है। इसका 31,360 रुपए मेरा बिल आया हुआ है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या होगा आगे। बिल की वजह से इतनी परेशानी बनी हुई, यकीन करो लोग खाने की वजह से नहीं परेशान है, बिल की वजह से परेशान है। हर बंदे से पूछो, पहला जुमला उनका ये होगा बिल जो है ना, बिल की वजह से परेशानी बनी हुई है। हमारे मोहल्ले में एक औरत ने, यकीन करो, अपनी बच्ची के लिए शादी के लिए उसने कुछ जेवर लिए हुए थे, मैंने खुद, मेरे मोहल्ले की बात है, उसने वो बेचे हैं आज, तो उसका बिल जो है ना, बिल जमा करने के लिए जो है ना उसने पैसे कटे करने हैं। एक औरत ने जो है ना गैस का मीटर जो है ना, उन्होंने कह दिया कि यार हमारा मीटर ही ले जाए, उनका गैस का बिल जो है ना आया हुआ है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये उसका गैस का बिल आया हुआ है। बिजली का तो छोड़ दे, बिजली का तो वैसे भी आसमान पे हो रहा है। उन्होंने बिजली का बिल देने के लिए बेटी का जहेज, बेटी का जहेज के लिए उसने बालियां ली थी, तो वो जो है ना मेरे सामने जो है ना उन्होंने दिए अपने बेटे को। उसके बेटी की पीसीओ की दुकान है कि भाई ये बेचो और जाके जो है ना बिल जमा कर दो, वरना गैस के बिना तो गुजारा हो जाएगा। ठीक हो गया, बिजली के बगैर तो गुजारा होना ही नहीं है सर। 3 मरले का उनका मकान है, तो आपको पता है गर्मी कितनी हो रही है, आप खुद देखिए, आप पसीना पसीना खड़े। तो बिजली का बिल जमा करने के लिए ये मैंने आपको देखा हुआ वाकया, और इसी महीने का है। अमीन पार्क में मेरी रिहाइश है, घर के उसने खुद जो है ना अपनी बेटी का जो जमा किया था कि चलो शादी के लिए आसानी हो जाए, वो बेच दिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें बिलाल भाई कि आगे जाके क्या होना है। तो अब इसमें मजीद भाई खड़े हैं सारे, सबकी राय। बिलाल भाई मसला ये खबर और भी सुनी है, एक खबर और भी सुनी है कि गवर्नर हाउस ते कमिश्नर हाउस ते कमिश्नर हाउस ते कोई 40 करोड़ रुपया ला रहे ने। किस मकसद वास्ते ला रहे ने, क्यों ला रहे ने, दसो ना। इन्ने बिल आने ने, क्यों ना आने ने बिल? अगर ये हाँ सही बात है, साढ़े जेडे रुपये ने ना ए चुक उत्थे ला रहे ने, कुछ बाहर भेजणगे, कुछ उत्थे लाणगे। गरीब बंदा की करे? मैं तो गरीब नूं मशवरा देंगा, पिंडी जाओ, गुर्दा भी विकदा जे, अख भी विकदी जे, फिफड़ा भी विकदा जे, चमड़ी भी विकदी जे, चमड़ी भी विकदी जे। पिंडी जाओ मेरे नाल, मैं तुहानूं दसना किते किते विकदी है। किहड़ा हॉस्पिटल वाला गुर्दा लैंदा, किहड़ा हॉस्पिटल वाला अख लैंदा। सारिਆਂ ਨੂੰ मशवरा यही देंगा, अपने गुर्दे शुरदे बेचो। एक अख नाल भी गुजारा हो जाता, एक गुर्दे नाल भी गुजारा हो जाता है। ते अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला, जिन्नी देर जिंदगी रही जियो, नहीं तो फिर मर जाओ, दफना देंगे, गल मुक जाएगी। बाकी नाज़रीन वेखो, तुसीं हुण वीडियो वेखी है, तुहानूं पता तो लग गया होना गरीब आवाम की आवाज़ का, ठीक है, किवें दुख अपने खोलते हैं। तो उम्मीद है कि भी हुकूमत तक ये वीडियो पहुँचे तो उन्होंने थोड़ा जिहा आवाम से एहसास आवे। तो ये ही जी, अल्लाह हाफिज़।